को भी अप्लाई किया है, तो ये काफ़ी हेक्टिक है। सम टाइम आप नेम स्पेस भूल गए, सम टाइम आपने बहुत। किसी किसी क्लास के साथ आपने इनहेरिटेंस की हुई है तो उसका आप ऐड करना भूल गए। ठीक है, जो कोई मैंने मेथड जो बहुत किसी और बहुत ट्रेड के थ्रू आ रहा था तो वो ट्रेड कॉल करना भूल गए। जी 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 सर। मैंने बहुत सुना है इसके लिए, हमारे जो मेरे सीनियर पर्सन है उन्होंने मुझे बहुत डांटा इस चीज के लिए कि मेरे से कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता था और 500 का एरर आ जाता था, क्योंकि क्योंकि हम, हमने वहाँ पे जी जी, हम ह्यूमन हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक। ओके, अजमल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So my name is Ajmal. I'm staying in India, Mumbai. Okay, and currently I'm working in a GPL Capital Private Limited. It's a finance company. So they are dealing with they're basically a brokerage firm. So in that, my role is a junior PHP developer. So I'm used to handling the website that called GPL Capital. And there's one more project is going on, like research recommendation. In that, I used to work on like to get the data from the Google Sheet, and we are storing in the data in the databases, and we have to show data in the front end. So that was a real time communication between, because we are dealing with the intraday trades. So we are for that we are using a pusher to real time updates. And about my family, so there's like three brothers and three sisters, and my mom is she's a housewife. And about my qualification, I'm just done my graduation in 2022. Uh, that's it. Okay, okay, great. So it means you are an IT graduate. Yes, sir. BSc. Yes. Okay, great, great. My always first question is that is your IT degree is helping in your career somehow? Um, Maybe not in the technical point of view, maybe on the communication level or some other points where you want to highlight. Okay. So basically, if you're talking about that degree, it's really helped me to get opportunity. Well, first, when you and every company they are asking for like, are you like a graduate, a postgraduate? Hmm. So yes, it's definitely work for me. And for the communication part, that also helped me to like communicate with the other person. Yes. So from my point of view, it's really helped me. But it's not a mandatory to like to be a graduate or postgraduate to be get the job. If you have a skilled, then you can also get the job in like IT fields. Okay. It's be an edge, but it's not mandatory, according to your opinion. Yes, 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 Okay, okay, yes. great. So now we are going to further start the first PHP question. So my first question is, I always says someone start from the Laravel directly. So do you familiar with Okay. the core PHP? Not that much, sir, because I like start my career through in Laravel only, sir. So this is my first company. Mhm. So I like working on a Laravel only. So not that much, but I know the basics part of the PHP, core PHP things. Okay, okay, good. So do you think that uh, PHP can be an edge in your Laravel, or somehow you felt that you have some understanding of PHP or object-oriented programming? Oh, Yes, sir, definitely. Because when if you want to start the Laravel directly, so you have to knowledge of the oops part. That's what PHP one, and some basic things you get to know about the PHP. Because if you don't know about the basic things of the PHP, not that much is required, but some things, little bit it's requirement for the learning of Laravel. So yes, sir. So it's not you don't need to learn everything in core PHP. If you know basics idea, then you are ready to learn Laravel. It's easy to learn Laravel. Yes, sir. okay. So you have basic understanding of PHP, how to Yes, sir. communicate with the database, something like this. Yes, sir. But I didn't like
use the like MySQLite Connect that function from the last 2 years, because from the last 2 years I'm working with Laravel only. So, Okay, okay, but I know like I just practice the CRUD operation. So in that in core feature and that I used to MySQLite Connect functions okay, to connect okay. database. Yeah, definitely. While we are using the Eloquent, we totally forgot the queries, giants. Yes, yes, and sir. so on. Okay, great. So we can start with the Laravel. I'm not going to going deeper with the PHP. Just going to Okay. start with very basic question. Can you please elaborate what is the difference between double equal and triple equal? Okay. So basically, if you're going with a double equal to, so it's checking the variable is matching or not. Okay, the data is matching or not, and the if you're going with a triple equal to, they are matching the data with also they are matching a data type also. So if the data type is different and variable is same, so in that case it will give you the false with the triple equal to. Okay, great. Just a minute. Okay. Okay, great. So my next question is about methods. Uh, do you Yes, yes, sir. Okay, Ajmal, sorry for interruption. Actually, It's my okay. yeah, yeah. Thank you. Okay. Okay. My next question is about methods. So, what are the static and non-static methods? Okay. Static and non-static method. Yeah. Uh, you're talking about a post get then uh, Uh, that this kind of method or what? no, So, these are basically global variables. So, oh, okay. Yes, yes. I'm actually asking about static versus non-static. Uh, Static method. It's a oops part, right? Static methods. yeah. Okay. So basically, if you don't want to create a like object of the class, then in that if you adding with a static keywords with the function, so in that case you can directly call with the function with the class with the uh, facade kind of double quotes uh, in that case. And non-static method we can for accessing. So we have to explicitly create an object for that. So without object creating, we cannot access the non-static method. And if you want to access the static method, then we don't need to create an object for that. We can call directly with the class name and the method name. Okay. Okay. Great. S- Yes, sir. So, yeah, my next question is about traits. So, as you know that PHP is not multi-inheritance, but we can achieve the multi-inheritance using the traits. So, do you use the traits in the Laravel, and do you have any example? So, please give that. Okay. So basically, I have not create the any traits class in the Laravel, but I use the trait class when we want to a soft delete feature. So in that case, we are using a soft delete traits, and some model somehow also providing us some traits also. So they are like I didn't remember the name of the like the trait class, but they are also providing when we creating a model, they by default they're providing us some traits. It is mentioned on the like below the class name. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Good. So, do you use the groups in the routes? How to group multiple routes in a single group? Let's say I want to apply a generic functionality on that. So, how I can do that? Okay, yeah, I used to like a group route because I recently work on some admin panel things. There's a front end and a back end. So in that case too, I want to separate the admin routes. So for that, I used to a group method
to like separate the admin route. Okay, but let's say I want to apply a middleware on 3 routes. So Okay. how can I do that using the group? Just give me the suggestion that Oh, you can apply that. okay. So for that, there's like a middleware method is available in that. So we can use the middleware method and we apply the all the like whatever the middleware we want to use, add on the group route. Otherwise, we can directly insert like, in array keywords. So in the keyword is middleware, and we can apply array new array, and we can insert the middleware name in that. There's a two-way basically. Okay, okay, great. Uh, so what's the method you prefer? Do you want to apply the middleware in the routes, or I need to apply on the controller side? What's your personal preference and what's the best practice? Okay, so if you're talking about the middleware, like apply on the route and method. So from my side, it's better to apply on a route when the user cannot access that route from the initial part only. So it is a best practice from my side, sir. I don't know exactly like how industry work on how industry use middleware like a route in a controller things. But Mhm. from my side, it's best practice to use like a route only, because if the user is not accessing or not authorized to access that method, so we can stop from the route only, so from the initial part. So it's from my side. Okay, okay, fine. So what are the resource routes? Do you know? Okay, so basically, when we are creating a resource route, they are providing us 7 different routes. Mainly, it is used for the CRUD operation. Mm-hmm. So they are providing us 7 methods for like to view the data, to edit the data, to update the data. This kind of 7 method the resource route are providing. So they are mainly used for the CRUD operations. Yes, sir. Okay, okay. Let's say there are 7 types of methods and I want to use only 3 of them. So how can I customize that resource route? So basically, if you want to three of them, so there's a like one keyword or maybe a like only. I think only method is available to like when we want to use out of three of out of 7 of them, three we want to use. So we can mention on that Got it. the only Yeah, keywords. yeah, got it, got it. Yes, sir. So, okay, okay. So my next question is from the relationship point of view. So Okay. how many relation types you have, and what's the difference between? Yeah, just first Okay. tell me that how many types, and then we'll go further. Okay. So basically, the relationship is a one-to-one relationship, and one-to-many relationship, and many-to-many relationship. So we like then what we can see the one second now. There's a one student table and one is a marks table, sir. So in that case, there's a one student having a only one marks row only. So in that case, there's a one-to-one relationship, and there's also for the one-to-many relationship, the post table and comment table. So when the sorry, one post having a multiple comments. So one Mhm. ID having a multiple ID. So in that case, the relationship between them is the one to many, and the many to many relationship. So in that case, one role having a multiple one role having a multiple permissions. So in Got that it. case, the many relationship. Yes, yes, got it. My next question is about, let's say you have one user which have Okay. one post, right? So how you decide that you need to apply has one relation or belongs to on that? Uh, okay. One user and what? Yes, one post. So how you will decide Okay. that you need to apply the has one or
Okay, or its okay. inverse belongs to. Belongs to you. Okay. When it's totally depend on the requirement what we want to the data. So if you want to like a, one-to-one relationship kind of thing, so when we are using a has one that they are like uh, and when we want to belongs to, there's an inverse relationship. Then the second primary, so in the inverse relationship, uh, in that case, the we getting the primary foreign key table for the first one, and the primary key table in the second place. And has one in the has one case, there are like a primary table having a first one, and the foreign key table having a second one. This kind of thing. I didn't explain that much, but I this is how it's worked. Maybe. Yeah. Okay, you are telling me opposite, but it's fine. Maybe you are not able to properly describe. और अगर आप Yes. उर्दू के अंदर फेमिलियर हैं तो हम उर्दू के अंदर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें आई एम आल्सो नॉट द नेटिव ऑफ दिस इंग्लिश, मैं उर्दू पर्सन, ओके। तो हम उसके अंदर कर लेते हैं अगर आप भी कंफर्टेबल हैं जी उसके जी जी। मैं उर्दू में भी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम जैसे कि अगर प्राइमरी की और फॉरेन की जैसे कि दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, तो अगर हमें प्राइमरी की को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और सेकंड सेकंड फॉरेन की को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इस केसेस में हैज वन का रिलेशनशिप क्रिएट होगा। एंड देन अगर इनवर्स रिलेशनशिप चाहिए, जैसे कि हमें अगर फॉरेन की वाले टेबल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और प्राइमरी की वाले टेबल को सेकंड प्रायोरिटी देना है, तो इस केसेस में हम अब अपना बिलोंग्स टू का केस उन बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप क्रिएट होगा। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, हम ये कह ओके, सकते हैं। गुड है, गुड है। ओके, नेक्स्ट, सेम हमारे पास यूज़र था और इसकी हमने प्रोफाइल को अपलोड करना है, राइट? हम्म। स्टोरेज स्लैश ऐप स्लैश पब्लिक, तो इसको मैं ओके। उस फोल्डर के अंदर कैसे पुश करूँगा? ओके, सो बेसिकली जैसे कि ये स्टोरेज स्टोरेज जो फोल्डर होता है, स्टोरेज ऐप एंड पब्लिक फोल्डर, जो कि मतलब वी कैन इट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द आउटसाइड और वेब एप्लीकेशन, मतलब कि वो एक्सेसिबल नहीं होता है बाहर के लिए। तो वो प्राइवेट प्राइवेट थिंग्स में ही हम बोल सकते हैं उसको। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है, मेथड अवेलेबल है। जैसे कि पब्लिक स्टोरेज के लिए पब्लिक मेथड अवेलेबल है, स्टोरेज के लिए वहाँ पे हमारे पास एक क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जी फाइल अवेलेबल है, जो कि हम उसको इसके थ्रू हम उसको इसमें स्टोर कर सकते हैं। ड्राइवर बोल सकते हैं हम, लोकल लोकल ड्राइवर बेसिकली मेंशन होता है वहाँ जी, पे स्टोरेज का। गॉट तो इट। उस केसेस में उसके थ्रू हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने जी जी, यूज किया है उस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल। आप जब उसको इनिशिएट कर रहे होते हैं तो मुझे पता चल रहा होता है कि आपने वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है, तो मुझे आइडिया हो जाता है आपने यूज़ किया हुआ है। ग्रेट। जी। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली, लेट्स से आपके पास मल्टीपल यूज़र के इमेजेस हैं, ठीक है, जिस तरह से यूज़र ओके। पोस्ट भी क्रिएट करता है और आपके पास स्टोरेज कम है, तो आप चाहते हैं कि जो यूज़र के इमेजेस हो वो कंप्रेस हो के जाएं, उनकी क्वालिटी रिड्यूस हो। तो इस चीज़ को हम लारवेल के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं? लेट्स से आजकल लेटेस्ट फ़ोन हैं, उनके कैमरे हाई हम्म। क्वालिटी हैं, 8 MB 10 MB के अंदर वो पिक्चर शूट करते हैं। तो आप चाहते हैं कि 10 MB की पिक्चर 500 KB 600 KB के अंदर हो, और उसका जो उसकी जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा रिड्यूस ना हो, बस थोड़ा सा इम्पैक्ट हो। तो इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे लारवेल के अंदर? सो अभी तक उस केसेस में तो बस कि फर्स्ट तो हमें ये हैंडल करना पड़ेगा कि लार्ज साइज इमेजेस को अपलोड करने के लिए, उस हम्म। केसेस में हमें अपलोडर की, मैंने एक्चुअली सब मैंने उतना यूज नहीं किया है उसको। मुझे लगता है कि हम ये चीजें कंट्रोलर में आने के बाद ही वो पॉसिबल हो पाएगी। तो बिकॉज कि और हमें यूजर की एंड से अपलोडर साइज बढ़ाना होगा उस केसेस में। यूज़र ने अपलोड कर दी, आपकी एप्लीकेशन कर उस दियो। चीज़ को हाँ। मिनिफाइड कैसे करेगी? मैंने। ओके।
यानी कि मैंने और 10 MB की पिक्चर अपलोड की, जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पे हम्म। पिक्चर सेंड करते हैं तो उसकी ऑटो क्वालिटी हाँ, रिड्यूस हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो इसके बारे में नहीं है कि ओके, इट्स फाइन। अगर आपको किस चीज़ का आइडिया नहीं है तो हर बंदा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता है, तो लाजमी नहीं है कि हर चीज़ का आइडिया हो। ठीक है। जी सर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको आती होंगी, मुझे नहीं आती होंगी। ठीक है। तो ये केस हो सकता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज n+1 क्यूरी प्रॉब्लम? N+1 क्वेरी प्रॉब्लम, ओके। तो जैसे कि ये क्वेरी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप के केसेस में ही होती है। जैसे कि हम जॉइंट्स अगर क्रिएट करते हैं तो हमें जॉइंट्स के साथ जैसे कि N+1 मतलब कि एक क्वेरी रन होने के बाद उसके करस्पॉन्डेंस में दूसरी क्वेरी, ये दो ही क्वेरी रन होती है उस केसेस में। जो विथ कीवर्ड्स के साथ अगर हम नया रिलेशनशिप क्रिएट किया है दो टेबल के साथ में, अगर हम विथ हम्म। कीवर्ड अगर यूज नहीं करते हैं तो N+1 का रिलेशन क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर अगर हम विथ कीवर्ड अगर यूज कर के साथ करते हैं तो उस केसेस में N+1 का एग्जीक्यूशन होता है, और जिसमें दो ही क्वेरी रन होती है रिलेशनशिप के साथ। ओके, n+1 को हम रिजॉल्व करते हैं यूजिंग द विद मेथड, बिल्कुल ठीक है। विथ मेथड के साथ, यस सर। जी जी। अब मैं इसकी बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूँ कि जब विद लगाते हैं तो पीछे क्यूरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ ऐड ऑन होती है जिससे हमें विद के थ्रू फायदा होता है। लेट्स से हमारे पास 20 यूज़र हैं और ओके। की 100 पोस्ट हैं हर यूज़र की। तो इस केस में हमें हम्म। कैसे बेनिफिट होता है इस विद के थ्रू? बैंड द सीन क्यूरी कौन सी जनरेट होती है? हम्म। ओके। तो बिहाइंड द सीन सर, इसके बारे में नहीं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कलेक्शन मेथड्स। हाउ मेनी, हमारे पास कौन कौन से कलेक्शंस के मेथड्स हैं? कुछ के बारे में आप बता दें, तीन के बारे में एटलीस्ट। कलेक्शन मेथड में मैंने आप। प्लग करके मैंने यूज किया है, जी। जो कि एक ही यूज किया है मैंने सर एक्चुअली, और ज्यादा यूज नहीं किया मैंने कलेक्शन मेथड को। ठीक है। गेट हमारे पास क्या कलेक्शन का मेथड है? गेट, ओके, यस। हाँ, यस, गेट जी। कलेक्शन के मेथड है बहुत क्वेरी सारी में चीज़ें यहाँ हमने यूज़ की होती हैं, लेकिन यूज किया है, समाउ हाँ। इनके फैंसी हमें नेम्स नाम की याद। वजह से हमें नहीं पता होता। जी 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 जी। ओके ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, लेट्स से आपके पास एक यूज़र है और यूज़र जब डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है तो उसके बाद नेक्स्ट उसकी पोस्ट भी स्टोर होती है। ठीक है, एक ओके। यूज़र है और उसकी पोस्ट भी स्टोर हो रही है यूज़र के क्रिएट होने के बाद। ओके। बट हमारे पास इशू क्या आता है कि हमारे पास यूज़र सिस्टम के अंदर सेव हो गया और जब हमारी हम्म। क्यूरी पोस्ट पे गई तो किसी एक्सेप्शन की वजह से पोस्ट क्रिएट नहीं हो सकी। तो हम चाहते हैं कि दोनों रिकॉर्ड मस्ट क्रिएट होने चाहिए। अगर किसी एक के अंदर इशू है तो दोनों क्रिएट नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं लारवल के अंदर? तो बेसिकली इस केसेस में हम ऑन डिलीट का जो कीवर्ड्स है हम उसको यूज कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल। तो हम वहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की जैसे कि रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं पोस्ट के साथ, अगर जैसे कि आपने कहा कि दूसरा टेबल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए जैसे ही यूजर क्रिएट हो जाए, तो हम केस क्रिएट करके कीवर्ड्स है तो हम वो यूज कर सकते हैं कि हाँ, अगर लेकिन दूसरा डिलीट। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारे पास यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, जो हमारी हाँ सेकंड हाँ। पोस्ट है उसकी क्रिएशन के दौरान इशू आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हाँ। यूज़र क्रिएट हुआ है वो भी रोल बैक हो जाए, वो भी क्रिएट ना हो। मैं चाहता हूँ दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, दोनों क्रिएट हों या तो दोनों क्रिएट ना हो। मैंने सुना है इसके बारे में, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसका है वो रोल बैक हो जाता है ठीक है। इस केसेस में। ठीक है। मैं लिख लेता हूँ सर, 2 मिनट दीजिए ना मुझे, ये बिल्कुल। क्वेश्चन थे।
आप क्योंकि वीडियो से भी इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। ये वीडियो में हाँ पोस्ट हाँ होगी तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। जी, ये कब तक पोस्ट हो जाएंगे सर? और ये विद इन 2-3 डेज हो जाएगी ये पोस्ट। ओके चलेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, हमारे पास क्रॉन जॉब्स क्यों यूज़ होती हैं, और उसकी एक एग्जांपल दें। ओके, सो के क्रॉन जॉब एक साल, जैसे कि जो जो काम ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उस केसेस में हम क्रॉन जॉब यूज करते हैं। नहीं नहीं, क्रॉन जॉब एक मतलब कि बंच ऑफ कोड्स है जो ऑटोमेटिकली बार बार रिपीटेडली रन करना हो, तो उस केसेस में हम क्रॉन जॉब्स क्रिएट करते हैं। अभी हम्म, रिसेंटली मुझे एक केसेस था जिसे मुझे TXT फाइल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे अपने डेटाबेस में स्टोर करना था। वो डेली बेसिस में थे, तो उस ठीक केसेस है। में हमने क्रॉन जॉब यूज किया था, जो कि एक शेड्यूलर टाइम हमने सेट किया था जिसका 8 अर्ली मॉर्निंग 8 AM का टाइमिंग था। हम्म, उसके बेसिस पे वो एवरी डे डेटा फाइल गेट करता था, देन उसको रीड करके डेटाबेस में स्टोर करता था। तो इस केसेस में हमने क्रॉन्च ऑफ यूज किया दैट्स या है। दैट्स द एग्जैक्टली यूजेज ऑफ दिस जॉब। यस। ओके, नाउ लेट्स से आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें हम्म। आपने हमारे पास यूज़र्स हैं मल्टीपल, और उन मल्टीपल यूज़र्स को ईमेल सेंड करनी है, और आपको पता है कि एक ईमेल पे 20 सेकंड्स लगते हैं, और हमारे पास सर्वर का यस। मैक्सिमम टाइम 5 मिनट है। बट आपने जो एग्जीक्यूशन करनी है उसकी, उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 50 मिनट्स है। तो इस चीज़ को आप कैसे अचीव करेंगे कि यूज़र का सिस्टम भी स्ट्रक ना हो बट आपका ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सके। तो उस केसेस में हम क्यू एंड जॉब्स को यूज कर सकते हैं, जॉब्स एंड क्यू को। तो जैसे कि इसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो इसको क्यू के थ्रू हम इसको डिले कर सकते हैं, और वो बैकग्राउंड में रन होते जाएगा, यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा उस केसेस में, और बट वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होते जाएगा। और जैसे कि वो एंड में प्रोसेस हो जाएगा, देन वो सारी ईमेल्स यूजर को सेंड हो जाएंगे उस केसेस में, और यूजर का इस मशीन भी स्टक नहीं होगा। ठीक, जॉब्स इन क्यू उस केसेस में यूज हो सकता है। ग्रेट। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट से आपने एक ऑथेंटिकेशन को इंस्टॉल किया, या फिर आपने पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किया लारावेल के अंदर, और वहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट टेलवेंट सीएसएस की पेजिनेशन आती है। तो उसको आपने वहाँ पे टेलवेंट के बजाय बूटस्ट्रैप की जो पेजिनेशन है वो यूज़ करनी है, तो उसको आप कैसे अचीव करते हैं। तो बेसिकली हमें जैसे कि आपने कहा कि बाय डिफॉल्ट एलिमेंट की पेजिग्नेशन हम वहाँ पे रिसीव होती है, तो हम जाके ऐप सर्विस प्रोवाइडर के बूट मैटर के अंदर हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि बूटस्ट्रैप का जो मेथड है, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं है, बट हमें जो इतना याद है कि ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर बूट गाट मेथड इट। के अंदर जाके हमें वो हमें मेंशन करना होता है कि गाट हमें कौन सा पेजिग्नेशन यूज करना है। यस, यस सर। पेजिनेटर आप यूज़ करके उसको कर पेजिग्नेशन। सकते हैं। यस। ओके, ग्रेट। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप सवालों के जवाब भी बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल से हट के फर्दर जो आपकी एक्सटेंडेड स्किल्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। लाइक गिट और गिटअप का आइडिया है आपको। गिटहब में हमने उतना यूज नहीं किया है, बट आइडिया है मुझे, बेसिक्स कमांड्स तो मुझे पता है। ठीक है, तो आप अपने कोड कोड के वर्जन्स को कैसे मैनेज करते हैं, अगर कोई और वे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो बता दें। डेली जैसे बैकअप्स कि या ये चीज़ें कैसे लेते हैं। जब इनिशियली जब मैं यहाँ इस कंपनी में था, तो उस केसेस में वो गिट यूज नहीं करते थे। सिर्फ मेरे आने के बाद उन्होंने लगा पूरा का, जैसे कि AWS एंड गिटहब वगैरह वो यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम वर्जन कंट्रोल मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारा डेटा जो भी हम डेली वर्क्स उस पे करते हैं, डेली बेसिस पे हम अपने गिटहब पे पुश करते हैं हम वो चीजें। और इस जो मैंने जैसे मैंने बताया कि जो इस GPL का जो प्रोजेक्ट है, वो सिंगल वन हैंड मैं ही देखता हूँ। तो इसमें कोई अदर डेवलपर इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से हमने कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया है इसको, ठीक सिंगल है। हैंडेड ही हमने किया है। और इसके लिए हम पहले हम जो सर्वर यूज करते थे, वो ओरेकल सर्वर यूज करते थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज के कारण हमने फिर उसको AWS पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो यस सर।
तो AWS के पास, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, AWS के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा कि ओरेकल सर्वर के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस था वो उतना बुरा नहीं था, बट सिक्योरिटी लेवल पे उतनी अच्छे नहीं थे। बट अगर हम AWS के साथ जाएंगे और बात करेंगे तो काफी फास्ट है, सुपर्ब है, क्योंकि हमने यूज किया है उस चीज को, तो कस्टमर काफी मुझे सपोर्ट। इम्पैक्ट मिलता है। जी, ये कस्टमर सब सपोर्ट बहुत अच्छी अच्छा है। है। जी जी, बहुत अच्छी है उसकी, अगर AWS के साथ में। बिकॉज कि अभी कुछ इंटीग्रेशन का बीच में हमें इश्यूज आ रहे थे हमारी टीम को, तो हम्म, उन्होंने सिंगल हैंड्स ऑन में बैठ के हमारे साथ, मतलब कि ऑलमोस्ट से 5 से 6 घंटा, अगर सर्वर पूरा डिप्लॉय करना था हमें, बिकॉज कि समहाउ इश्यूज आए थे अचानक से, 2 दिन हमारी साइट बंद थी। तो उसको टैकल करने के लिए जो AWS की जो टीम थी हमारे साथ, कंटिन्यूसली उन्होंने कम्युनिकेट किया था ओके। और हमारे साथ बैठे थे ताकि वो इस चीजों को रिजॉल्व रिजॉल्व कर सके। यस सर। तो काफी हेल्पफुल रहा AWS के साथ में हमारा। दैट्स ग्रेट, क्योंकि उस टाइम पे आपका डाउन टाइम चल रहा होता है और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में, हाँ, इवन बिजनेस ओनर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि उनकी साइट जल्द से जल्द लाइव हो। तो हमने ओरेकल में 10 सर्वर क्रिएट किए थे कि इश्यूज रिजॉल्व हो। एक्चुअली डीडोस अटैक हुआ था हमारी साइट पे, तो उस केसेस में हमने 10 सर्वर क्रिएट किए थे, बिकॉज कि फिर भी वो रुका नहीं, तो फिर हमने सर्वर ही चेंज कर दिया, AWS पे माइग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, तो तो वो इश्यूज थे। उसकी मेजर रीज़न क्या थी? सर्वर के अंदर लूप होल था या आपकी एप्लीकेशंस के अंदर कुछ इशू था? बेसिकली उस केसेस में एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता, बट समहाउ, मतलब कि इसमें इश्यूज ये थे कि जो अटैकर था वो मल्टीपल रिक्वेस्ट और मल्टीपल रीजन से भेज रहा था हम्म। रिक्वेस्ट, और जिसकी वजह से कि एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो रही थी और दूसरी रिक्वेस्ट बार बार हिट हो रही थी, जिसकी वजह से कि साइट लोड नहीं ले पाई उतना। ठीक है, जैसे तो कि उसके 1 मिनट में मिलियंस ऑफ यूजर्स सडन आ जाते हैं और साइट में इतनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उस चीज के लिए, तो ठीक उस है, केसेस में वो साइट डाउन टाइम में चले गई थी। ठीक है, उसके लिए तो जो फर्स्ट स्टेप बड़ा सिंपल सा है। आप लोड बैलेंसर गूगल का आप कैप्चा वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर कर देता है उस चीज़ को। हमने वो यूज किया है, गूगल कैप्चा ऑथेंटिकेटर हमने यूज किया है उस केसेस में। हमने सारे फॉर्म पे, हमने बीच में भी एक अटैक हुए थे, तो उस केसेस में हमने दोबारा से सारे गूगल वर्जन 2 हमने यूज किया है। चैलेंजिंग वाला जो गूगल कैप्चा का है, हमने वो यूज किया सारे फॉर्म्स में। ठीक है, ठीक है, मतलब अटैकर तगड़ा था, उसे यस, उस चीज़ कह को सकते हैं बाईपास ऐसे। कर लिया। क्योंकि बहुत सारी बाईपास ऐसी किए। ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी हम्म मैं समुंदर की उस पे खड़ा हो के इसकी गहराई नाप रहा हूँ, तो बहुत सारी हो हम्म। सकती हैं। रिसेंटली हमारे साथ भी हुआ है। तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ों को आपको डील करना पड़ता है। इवन आपका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी सपोर्ट नहीं करता, वो तो कहते हैं हमारे सर्वर के अंदर कोई इशू भी नहीं है, इवन उनके अंदर लूप होल हो भी जी सही तो। जी। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रेलेवेंट है, सर्वर्स के रेलेवेंट। जैसा आप कह रहे हैं कि मैं खुद स्टैंड लोन चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, तो सर्वर साइड भी आप खुद ही देख रहे होंगे, मतलब डिप्लॉयमेंट्स, डेली बेस पे अपडेट्स। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो है कि वो टीम, अदर टीम है। बट अगर जैसे कि डिप्लॉय करना हो, एफटीपी सर्वर जो है, मैं वो यूज करता हूँ, SFTP, जो कि जो भी डेटा कंटेंट नया है वो अपडेट करना रहता है। तो SFTP सर्वर हमने कनेक्ट करके रखा है, जो कि फाइलज़िला हम उसके लिए यूज करते हैं। तो उसके थ्रू हम अपडेट कंटेंट अपडेट करते हैं, ठीक जो है, भी कोड मतलब में कुछ मुझे अपडेट करना हो तो। जस्ट मैं जो डीपर सर्वर वाली साइड है उसके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि वो डेवऑप्स का काम है। बट जो जी डिप्लॉयमेंट्स के रेलेवेंट है, मैं जस्ट उसको कह रहा हूँ कि लेट्स से एक जी। फीचर आपने ऐड किया, पहले यूज़र्स का फीचर था, अभी आपने यूज़र की पोस्ट का फीचर ऐड किया, तो इस चीज़ को आप खुद डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे? ये सब मैं खुद डिप्लॉय करता हूँ। उस केसेस में जैसे अभी पहले, जैसे कि मैंने कहा कि हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा का पूरा कंटेंट डेटा, मतलब कि कोड कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है इस केसेस में। हम जैसे कि डायरेक्टली पाइपलाइन को यूज नहीं करते कि डायरेक्टली वो पाइपलाइन कनेक्टेड है देन वो सर्वर पे डिप्लॉय हो जाए। तो फिलहाल हम्म। के लिए हम वो अचीव, फ्यूचर में अचीव करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम कोड कॉपी एंड पेस्ट करते हैं सर। मैनुअली, मतलब वन बाय वन, मैनुअली एक करते हैं, फाइल के वन अंदर बाय। जाके। जी और ये खुद मैंने किया हुआ है काफ़ी टाइम, इवन टीम के साथ भी मिल के उनके चीज़ों को भी डिप्लॉय किया है, तो ये काफ़ी हेक्टिक है। सम टाइम आप नेम स्पेस भूल गए,
समटाइम आपने बहुत। किसी किसी क्लास के साथ आपने इनहेरिटेंस की हुई है तो उसका आप ऐड करना भूल गए। ठीक है, जो कोई मैंने मेथड जो बहुत किसी और बहुत ट्रेड के थ्रू आ रहा था तो वो ट्रेड कॉल करना भूल गए। जी 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 सर। मैंने बहुत सुना है इसके लिए, हमारे जो मेरे सीनियर पर्सन है उन्होंने मुझे बहुत डांटा इस चीज के लिए कि मेरे से कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता था और 500 का एरर आ जाता था, क्योंकि क्योंकि हम, हमने वहाँ पे जी जी, हम ह्यूमन हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं, और ये जी ह्यूमन का मतलब एक लिहाज से मसला नहीं भी है, क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी तक बंदा चीज़ों को याद रख सकता है। जी तो ये चीज़ इवन मेरे साथ भी बहुत टाइम होती रही है, तो ये आपका मसला नहीं है, ये जनरली सब डेवलपर्स का मसला है, जूनियर सीनियर सब का। और जी अभी हम फुली ऑटोमेशन पे आ चुके हैं, तो उस पे मैंने रिसेंटली कोर्स भी लॉन्च किया है। आप उसको वॉच करके जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप की मेंटल एनर्जी भी सेव होगी, जी एरर सर। एरर फ्री होगा, इजी होगा। स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा एक जी एक्स्ट्रा वर्क लगता है, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जी इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली वो वॉच करूंगा सर। ओके, ग्रेट। हमारा सर्वर साइड भी कवर हो गया, देन हमारे बैकअप साइड भी कवर हो गया। हमारा डेटाबेस साइड, आपको क्या लगता है आपकी डेटाबेस लेवल की स्किल्स कैसी हैं? उसमें से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? यप। जी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप क्वेश्चंस। मेरा उतना अच्छा नहीं है मतलब कि एक्सपर्ट लेवल पे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे है, जॉइंस भी मुझे पता है। देन क्वेरीज आप मैं राइट कर सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स क्वेरी अभी तक मुझे राइट करने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, बिकॉज कि मैंने इतनी ह्यूज डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं किया है। तो अगर जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो डेफिनेटली मुझे गेट टू आइडिया रहता उस चीज का, बट अब ग्रेट, फिलहाल के लिए तो नहीं है सर। बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपकी, माशाल्लाह। और भी इस तरह से काम करते रहें, डेली बेस पे लर्न करें चीज़ों को। ठीक है। जी सर। आपने इंटरव्यू के अंदर जो जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, आप मज़ीद उनको देख सकते हैं कि कौन से आंसर सही हैं, कौन से गलत हैं। फर्दर मैं भी ट्राई जी सर। करूँगा कि उनको मैं पोस्ट करूँ कि कौन सी इन क्वेश्चंस के आंसर कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, जी सर। तो मैं उनको भी पोस्ट करूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। हम इस इससे पहले मैं आपसे कॉन्सेंट लेता हूँ कि क्या हम इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? आप इसकी परमिशन देते हैं? जी आप कर सकते हैं, जी 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 सर। जी ओके, सर। ओके, थैंक यू, एंड थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच। फॉर योर टाइम। यस सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, हैव अ गुड नाइट, नॉट डे। सेम टू यू सर। या गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके सर, आप काफी स्वीट है। मुझे बस थोड़े से फीडबैक आपसे चाहिए थे कि जी, मतलब मैं बोलिए। दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये एंड होने वाला है, तो फिर उसमें हम कर लेते हैं इसको डिस्कस। ओके ओके ओके।